સરસ જાડી જાડી છાશ છે ભાઈ. હો અને દહીં, આ દહીં છે કે છાશ છે? અને આ છે જાડું જાડું દહીં. સરસ સરસ ભાઈ. તો મિત્રો હું તમારા માટે પહોંચી ગયો હતો ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે, એટલે કે બેટ દ્વારિકા. તમે જોઈ શકો છો આટલી બધી ભીડ છે, આટલા બધા માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. આટલી મોટી ભીડ મેં મારા જીવનમાં પહેલી વાર જોઈ છે. તમે અત્યારે જે લાઈન જોઈ રહ્યા છો એ લાઈન છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટેની લાઈન છે. આ લાઈન લગભગ 1 થી 2 કલાક તમે લાઈનમાં ઊભા રહો, 2 થી 3 કલાક, તો તમારો નંબર આવે છે ભગવાનના દર્શન કરવાનો. અને ત્યાં આગળ તમારે ખાસ તમારા ફોન, મોબાઈલ બધું સામેનું જે વ્હાઇટ કલરનું જે તમને ઘર દેખાઈ રહ્યું છે એની અંદર જમા કરાવવાનું હોય છે. ઓફિસ છે, ફોન અને તમારા બેગ બધું જમા કરાવવાનું હોય છે, લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું હોય છે. મંદિર પરિસરમાં મોબાઈલ ન લઈ જવાને કારણે હું તમને અંદરનો વિડીયો ન બતાવી શકું. ભગવાનના દર્શન કરીને મેં અહીં આગળ જે ભગવાનનો મહાપ્રસાદ છે એનો લાભ લીધો હતો. તમે પણ ત્યાં જાઓ તો ભગવાનનો મહાપ્રસાદનો લાભ લેવાનું ચૂકશો નહીં. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બધાને જય દ્વારકાધીશ. તો વ્યુઅર્સ, અત્યારે અમે જે ગાડી છે અમારી બેટ દ્વારકા આવી ગઈ છે અને પાર્કિંગમાં ગાડી અમે મૂકી દીધી છે. અને હવે અમે અહીંથી જઈશું મુખ્ય મંદિર તરફ. અને ઘણી બધી યાત્રાઓ છે અહીંયા આગળ કરવાની છે, એ જગ્યા છે. તો અમારી ગાડી છે અમે અહીં પાર્કિંગમાં મૂકી દીધી, મૂકીએ છીએ. અને હવે અહીંથી અમે આગળ જઈશું, અમારી યાત્રાને વધાવીશું અને જઈશું અમે મંદિર તરફ. જે સામે દેખાઈ રહ્યું છે એ મંદિર છે. તો ત્યાં આપણે જઈએ. ચલો આગળ મળીએ છીએ આપણે. જો અત્યારે અમે ચાલી રહ્યા છે, મમ્મી બી ચાલે, ચંપલ હાથમાં લઈને ચાલી રહ્યા છે. પગમાં દુખાવો થઈ રહ્યો છે એટલે પપ્પા ચાલી રહ્યા છે. અને આ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. અને પિયુષ મસ્તી કરી રહ્યો છે. અને આ પ્રિયુષ પણ મસ્તી કરે છે, પ્રીત પણ મસ્તી કરે છે. અને હું પણ ચાલી રહ્યો છું. મજા આવી રહી છે. ચાલીને જવાની મજા અલગ છે. અહીંથી 20-20 રૂપિયામાં રિક્ષા લઈ જાય છે, પણ અમે તમારા માટે ચાલીને જઈ રહ્યા છીએ. ચાલતા ચાલતા રસ્તાના દ્રશ્યો બતાવીએ. તમે જોઈ શકો છો, પાછળ બ્રિજ જોઈ શકો છો, સરસ મંદિર જોઈ શકો છો. આ બાજુ મંદિર નજીક જ છે મંદિર, એટલે અમે ચાલીને જઈએ છીએ. શું છે? દહીં છાશ ક્યાંય બતાવો છે. હા, સરસ જાડી જાડી છાશ છે ભાઈ. હો અને દહીં, આ દહીં છે કે છાશ છે? અને આ છે જાડું જાડું દહીં. સરસ સરસ ભાઈ. મજા આવી ગઈ. ચાલો દ્વારકા આવો ને તો અમને ભાઈની મુલાકાત લેજો અને દહીંની પ્રસાદી લેજો. શું નામ તમારું ભાઈ? ભગાભાઈ. ભરવાડ? ચારણ. ઓહો, સરસ સરસ, મજા આવી ગઈ. સરસ સરસ. ચલો જો છાસ બધા યાત્રિકો પીવા છે. ये जो બધા અમારા ફેમિલી બધા ચાલ. મમ્મી મજા આવી તમને? હા, જો બધા ચાલ્યા છે. પિયુષ કેવું લાગે તને? મજા આવી? હા, જો બધા ફેમિલી ચાલી રહ્યા છે. આપણે ક્યાં આવી ગયા અત્યારે? બેટ દ્વારકા. अभी आप जब भी बेट द्वारिका जाएंगे तो आप देखोगे
कि भगवान का जो परिसर मंदिर का है, मुख्य मंदिर का परिसर, उसके बाहर ऐसा शेड लगाया गया है और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप कुछ भी ऐसी चीज़ अपने यादगिरी के तौर पे लेके जा सकते हो अपने घर पर। बहुत ही वैरायटीज़ की आइटम है यहाँ पर, देख रहे हैं आप बहुत लोग सैलानी वो खरीदी कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ न कुछ ख़रीदा था यादगिरी के तौर पे। और उस तरफ है सोने की द्वारिका जो नया बना है मंदिर, वो है। और इस साइड जाओगे तो आपको बीच जो है, दरिया है, वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपके लिए जाएंगे मुख्य परिसर के अंदर। आपने अपने जीवन में इतनी लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ नहीं देखी होगी। ये मुख्य मंदिर का परिसर है जो बेट द्वारिका में है। अभी हम देख रहे हैं ये मंदिर तरफ जाने का रास्ता है और इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे लोग आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की तादाद बहुत थी, भीड़ बहुत थी, लेकिन मैंने आपके लिए ठान लिया था कि दर्शन आपको करवाना है तो करवाऊंगा। लोग दूर दूर से आए थे, बहुत दूर से। मैंने सबसे बात भी की थी कहाँ कहाँ से आए थे, कितनी देर से आए हैं, और सब ने अच्छे से जवाब दिया। इकट्ठा हुई पब्लिक, अब देख रहे हैं कितनी सारी तादाद में लोग आए हैं, भारी मात्रा में लोग आए हैं दर्शन करने के लिए रणछोड़ जी के। और सभी को ये जो आप देख रहे हैं सलाह दे रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सबको सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ख़ास ये बात है कि आपको मंदिर परिसर में वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो या तो अपने कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त को अपना फ़ोन है वो अपने कीमती सामान दे के रखें, या तो फिर आपको यहाँ पर एक सुविधा बना के रखी है जहाँ पर अपने आपको फ़ोन और जो भी मोबाइल वगैरह है हमारे पास कीमती चीज़ है वो आपको जमा करवानी होती है। उसके भी बड़ी बहुत लंबी लाइन कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मैं भी वहाँ कतार में खड़ा रहा था और वहाँ पर अपना फ़ोन जमा करवाया था। अभी आप देख रहे हैं इतनी लंबी लाइन जो दिख रही है आपको मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए, मुख्य मंदिर में लाइन बहुत बड़ी है, बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं। और ये लंबी लाइन देख के तो एक बार तो मैं हैरान हो गया था। मैं ऐसा लगा था कि दर्शन करूँ या ना करूँ, लेकिन लाइन में खड़े रहने के बाद में भी भगवान के दर्शन मैंने कर लिए। थोड़ा सा हालांकि थोड़ी मुश्किल तो रही, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन हम इतनी दूर से प्रभु के दर्शन करने आए हैं और बहुत लोग आए हैं तो सबको भी दर्शन का लाभ मिले और हमें भी लाभ मिले। ऐसी मनोकामना के साथ में लाइन में खड़ा रहा और अंत में प्रभु के दर्शन मैंने किए। जब अंदर जाओगे आप तो दिव्य अनुभूति होगी, दिव्य अलौकिक अनुभूति होगी। आज भी श्री कृष्ण के टाइम के जो भी है मंदिर अंदर परिसर और घर है, बहुत ही अच्छा देखने की जगह है। तो अब भी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप जाओ वहाँ पर, प्रभु के दर्शन पाओ। और दर्शन करने के बाद में हमने फिर से एक, आप दिख रहे हैं ये लाइन में सब खड़े हैं, हम भी लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर हमें बाबा जी के दर्शन हो गए, वो जब दिख रहे जा रहे हैं, केसरी भगवा कपड़ा उनका है। और ये है जहाँ पर हमको भोजन करना है, ये सब लाइन में खड़े हैं भोजन के लिए। एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है। भोजन माने प्रसाद है, महाप्रसाद है। द्वारका धाम जो आसपास पानी तो बहुत है लेकिन पानी सब खारा है। यहाँ मीठा पानी आपके लिए प्रबंध करवाते हैं, मीठा पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। द्वारका साइड जाओगे तो आपको मीठा पानी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको ये मीठे पानी से बना हुआ भोजन करवा रहे हैं। हम भी लाइन में खड़े रहे थे, बहुत लंबी लाइन थी। प्रभु के दर्शन करने के लिए हम भी खड़े रहे थे और आप भी देख रहे हैं कितनी बड़ी लाइन है। और हमने यहाँ पर एक साधु महाराज के दर्शन किए थे, उनकी बहुत बड़ी जटा थी। बार बार हम उनसे ही हमारा जो ध्यान है आकर्षित हो रहा था। हम लाइन में खड़े भोजन की लाइन में खड़े थे और हमको दिख रहे थे साधु महाराज जी। ये देखो आप देख रहे हैं जटाधारी महाराज हैं, वो भी भोजन के लिए लाइन में आए थे। अभी हम फाइनल हमको हमारी जो डिश है थाली मिल गई है, हम भोजन कर रहे हैं। अभी प्रभु के दर्शन करते हैं, मन में एक बहुत ही खुशी है, आनंद है कि दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और दोपहर का समय है, भोजन कर रहे हैं हम, भोजन किया हमने।
और भोजन करने के बाद में अभी आप देख रहे हैं सभी लोग जो यात्रालु है, श्रद्धालु है, वो भगवान का प्रसादी लेने के लाइन में कितनी देर से खड़े थे। और यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा भी है, अगर आपके छोटा बच्चा है तो आप महिला है, छोटा बच्चा है तो आपको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही बढ़िया सुविधा है, खम्मन है, ये देख रहे हैं बूंदी है, कढ़ी चावल, सब इतना बढ़िया भोजन था कि हमें याद रह गया था हमारे जीवन में। आप देख रहे हैं ये भाई चावल दे रहे हैं।